हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द pond ecosystem. There the abiotic components here present is a physical and climatic regime. There is a pond receive a solar radiation which provides it the heat and the light energy for the strain of life. There is the first important here is the light. The light is the case of the well is a pond with the clear water, sunlight, and penetrate up to be bottoms. In a deep ponds, penetration of the light depend on their transparency of water, the amount of the dissolved suspended particles, nutrient, and the number of animals and plants are determined to the transparency of their water and control the penetration of light in it. That is the most important for the role on a light of ecosystem. And second is a temperature. Here the temperature, the heating effect of solar radiation, the lead to diurnal of day and the night, or the seasonal temperature cycle in the tropical regions. Here are not be much temperature variation. At the high altitudes, there are the remarkable seasonal temperature variation. And the second is a inorganic substance. There is an inorganic substance is most important here, and these are the water, carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, and a few other elements like a phosphorus as phosphorus, sulfur as a phosphorus is depend on the location of the pond, and oxygen and carbon dioxide are is the dissolved state in a water. The all animals and the plant depend on the water from their foods and exchange of gases. There is a inorganic substance here. Yeah, like a water, carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, and food element is a sulfur and phosphorus. There is a oxygen and carbon dioxide. Also, there are inorganic substance here and exchange to the gas. The next is a organic compound. The commonly found organic matter in the pond is the amino acid and the humic acid, and their breakdown product of the dead animal and plant tissue. There are partly is dissolved in the water and the remaining are accumulated in the sediment. There is the most important here. The important also here is a biotic component. There is a biotic component is a producer and autotrophs. There is a synthesize a food all the heterotrophs of their pond. There are following two types is a floating plant and rooted plant. There is a most important plant here is a floating plant and rooted plant. The floating plant is there is called to the photoplankton. Photoplankton is a photo means plant and plankton means floating. For example, is a Progyra and the Eutroxis and the terms and Volevex. There is a most important is a floating plant here. The next is a rooted plants, and these plants occur in the is a concentrated layer from to peripheral to be a deeper zone. Some plants of rooted is a plants that are here a type of virulosis and Satygaria and Hydria rupias and Cora. There's a rupias and Cora is here, and there is a rooted plant here. But is the next is a consumer uh, or heterotrophics. They are consumers as heterotrophics. Animals which are feed directly on the autotrophs. Example: insect larvae, tadpole, and snails. Or other animals are sunfishes and the bass. And decomposer here, there is there a distribute in the walls pond but are most abundant at the bottom of the pond in the sediment is example bacteria and many different types of macro. There is the most important here. तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो है तालाब के पारितंत्र की संरचना। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तालाब के पारितंत्र की संरचना। देखिए संरचना से बहुत सी बातें यहाँ पर इंटरलिंकिंग है, क्योंकि संरचना देखिए जैसे त्रिपाण स्टडी सेंटर भी एक संरचना बना रहा है जिसमें हर एक बच्चों को के लिए कुछ न कुछ यहाँ उपस्थित है जिसको आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ये फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इसको जो है वो बच्चे लाभान्वित हो। लेकिन कहते हैं कि मेरे एक प्रयास करने से कुछ नहीं होना है, इसमें आपका भी महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना तो बच्चे घर जाना है, ना उनको बार बार कहना है। आपने सिर्फ इतना अपनी तरफ से करना है कि जो है
आपने देखा होगा ये लिंक जो यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो, वहाँ पर लिंक होगा इसका, उस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिससे क्या होगा, जो भी बच्चों को ये वीडियो की आवश्यकता होगी वो वीडियो लेके वो लाभान्वित होंगे, और हो सकता है कि आपको शुक्रिया अदा भी करें क्योंकि आपके थ्रू वो वीडियो उन तक मिला है। तो ये एक अच्छी बात है जो दूसरे बच्चे तक पहुंचने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं एक बात जानता हूं कि ये वीडियो कई मायने में इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जैसे मर्जी सोचो, लेकिन ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक बात को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, और जो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सुचारू रूप से और ढंग से समझाने की बात होती है। तो ये कई मायने में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, और ये मुझे पता है कि आपको बहुत समझ में भी आता है, क्योंकि कहते हैं जब तक कोई टॉपिक समझ में ना आए उस टॉपिक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो क्या कीजिए, इसको साइड से लिंक को जो है कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। चलिए कहते हैं तालाब के पानी तंत्र की संरचना। तो ये संरचना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें एक अजैविक घटक और जैविक घटक दो तरह के चीज़ें जो होती है सम्मिलित होती है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक जो होती है, अबायोटिक कंपोनेंट जो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अबायोटिक होते हैं, जो अजैविक घटक होते हैं उसमें भौतिक अथवा जलवायु व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसमें कई रूप होते हैं। कहते हैं तालाब सौर विकिरण प्राप्त करती है। देखिए तालाब में भी सौर विकिरणें जाती है, और जो है वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनको भी जो है ये सन की जो रोशनी होती है वो उनको काफ़ी हेल्प करती है उनको जीवन यापन करने में। जिससे जीवन को बनाए रखने के लिए ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा मिलती है। सिर्फ हमें ही ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में सबको एक ही जैसा प्रक्रिया होती है, और वही जो है सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही रहता है प्रकाश का। कहते हैं प्रकाश स्वच्छ जल के उछले तालाबों में सूर्य के प्रकाश तल का जो है पहुंच जाता है, और गहरे तालाबों में प्रकाश की वेधन सीमा जल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है, जो घुले हुए कणों और पोषक और जंतुओं को पादपों की मात्रा द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित होती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश तब तक नहीं अंदर पानी तक पहुंचेगा जब तक वो साफ़ सुथरा नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए कचरा भरा हुआ है तालाब में, तो क्या उसका प्रकाश जो है जीव जंतु को प्राप्त होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि जो कचरा है वो प्रकाश को जो है रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी उस तक जो है प्रकाश पहुंचने नहीं देगी जीव जंतु तक, जिसकी वजह से कई जीव जंतु जो है अपना प्राण को भी त्याग देंगे। तो इसलिए हर जीव जंतु के लिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता महसूस रहती है। उसके पश्चात है तापक्रम। देखिए टेम्परेचर का भी अपना एक महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है सिर्फ आप टेम्परेचर सिर्फ आप ही इनहेल करते हो, आप ही लेते हो टेम्परेचर? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है हर एक जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी जीव जंतु चाहे वो पानी में रहते हो चाहे स्थल में रहते हो, दोनों के लिए जो है तापमान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं सौर विकिरणों के ऊष्मीय प्रभाव के कारण दैनिक दिन रात का जो है मौसम जो है ताप चक्रों का निर्माण होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ताप परिवर्तन नहीं होता है। उच्च अक्षांशों के कारण मौसमी ताप में परिवर्तन अत्यधिक देखने को मिल सकता है। अब उसके पश्चात हमारे समक्ष है अकार्बनिक पदार्थ। देखिए अकार्बनिक पदार्थ जो होती है इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और कुछ दूसरे तत्व जैसे कि सल्फर और फास्फोरस तालाब की स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि इनके लिए कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ अवस्था में रहती है, यानी घुले हुए अवस्था में ये तालाबों में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो सभी जंतु एवं पादप अपने भोजन एवं गैसों के आदान प्रदान के लिए जल पर निर्भर करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल चाहे मानव हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के लिए जल जो है एक अमृत तुल्य माना जा सकता है। कहते हैं अगर कार्बनिक यौगिक देखा जाए तो तालाब में सामान्यतः पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल और ह्यूमिक अम्ल होते हैं, जो परंतु जिसमें जंतु एवं पादप उसके विभाजन से प्राप्त उत्पाद होते हैं, ये आंशिक रूप से जल में घुले रहते हैं और शेष अपसाद यानी सेडिमेंट्री के रूप में जमा रहते हैं। कहते हैं दोस्तों कई चीज़ें जो होते हैं जलों को प्रदूषित कर दिया है, जिसकी वजह से जो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको सर्वाइव करना बहुत ही कठिन हो गया है। तो कहते हैं इंसान की गतिविधियों के कारण ये जीव जंतु जो है दिन प्रतिदिन जो है नष्ट होते जा रहे हैं, जिसमें आज बहुत ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
उसके पश्चात है जैविक घटक। देखिए जैविक घटक में उत्पाद अथवा स्वयं पोषी आते हैं। ये तालाब के सभी विषमपोषी जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं प्लावी तैरने वाले पादप और दूसरा जो हो सकते हैं जड़ युक्त पादप। यानी आप कह सकते हो कि एक फ्लोटिंग जो प्लांट हो सकता है, एक जो होता है रूटिंग्स प्लांट्स हो सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर हम पहला देखें तैरने वाले पादप, जिसको हम प्लाविस पादप भी कहते हैं, इसको जो है पादप प्लवक यानी फैटो जो है प्लैंकटन भी कहते हैं। फ्लाइपो का मतलब होता है पादप और जो है प्लैंकटन का मतलब होता है पलवी या तैरने वाला पौधा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो स्पोगायरा है, यूलोथ्रियक्सा है, ठीक है, डायटम्स है और जो वाले वृक्ष भी इसके रूप में पाया जा सकता है। उसके पश्चात है जड़ युक्त यानी रूटलेस जो पादप होते हैं। ये वो पादप होते हैं जो परिधि से लेकर गहन क्षेत्र में सकेंद्रीय परतों में पाए जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आप देखना चाहो तो इसमें है टाइफा, सेजिटेरिया, हाइड्रिया और रुपिया कड़ा आदि पाया जाता है इसमें। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपभोक्ता या विषमपोषी। देखिए उपभोक्ता या विषमपोषी ऐसे जंतु जो सीधे स्वयंपोषी जैसे कीट, लार्वा, टेडपोल, स्नेल या अन्य जंतु जो है स्नाफिश और वास का भक्षण करते हों, उसे उपभोक्ता या विषमपोषी कहते हैं। यानी देखा जाए जो कीट पतंगों को खा के अपना जीवन जो है बिताते हैं उसे हम जो क्या कहते हैं उपभोक्ता यानी विषमपोषी में आता है। और अपघटक का मतलब होता है कि जो मरे हुए चीज़ों पर जो है जीवित रह के और उसका जो है अपघटक कर देता हो। जब सारे तालाब में पाए जाने वाले लेकिन मुख्यतः तालाब की तली के अवसाद में भी विद्वान होते हैं। उदाहरण जीवाणु और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है।